अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड तमाम स्टूडेंट्स को मैं अपने यूट्यूब चैनल रेस फॉर सक्सेस में खुशामदीद करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए CS 625 यानी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्यूशन स्प्रिंग 2023 लेके आई हूँ। आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और अपनी असाइनमेंट को खुद आपने सॉल्व करना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और एक दूसरे की हेल्प के लिए वीडियो का लिंक दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले हम असाइनमेंट का केस स्टडी पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। The United States possesses a range of professional engineering societies comparable to the UK. इस केस स्टडी में दो कंट्रीज की बात हो रही है, एक यूएस और दूसरी है यूके। यूनाइटेड स्टेट्स जो है अपनी प्रोफेशनल इंजीनियरिंग सोसाइटीज रखता है यूके के मुकाबले। In particular, there are two organizations that carry out many of the functions performed by the IEE and the BCS in the UK. यूके में दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं, एक है IEE और दूसरी है BCS। The Association for Computing Machinery ACM may be through of as comparable to the BCS, while the Institution of Electrical and Electronic Engineers यानी IEEE compares loosely with the IEE. Its computer society corresponding to the IEE Informatics Division. यूके की कंपनीज का हम मवाजना करने लगे हैं दूसरी यूएस की कंपनीज के साथ, यानी बीसीएस का मुवाजना कर रहे हैं हम एसीएम से और आईईई का मुकाबला कर रहे हैं या मुवाजना कर रहे हैं आईईई से। Both the IEEE and the ACM publish a range of journals covering theory and practice in all aspects of IT. They are the most prestigious and the most widely read of academic and professional publication in the field. IEE और ACM दोनों मिलकर बहुत से थ्योरी और प्रैक्टिकल के टॉपिक्स ना सिर्फ रीडिंग में बल्कि प्रोफेशनल आईटी के फील्ड में कवर कर रही हैं और बहुत ही वसी पैमाने पर ये कवर कर रही हैं। The IEEE, Computer Society and the ACM collaborate extensively on matters connected with the software engineer profession through joint committees and task forces. IEE सोसाइटी और ACM दोनों कोलैबोरेट हो गई हैं और दोनों मिलकर अपनी जॉइंट कमिटीज के जरिए अपने टास्क को परफॉर्म कर रही हैं। द IEEE/ACM Joint Steering Committees for the Establishment of Software Engineering as a professional meeting from 1993 to 1998 was the primary force that led to the Texas board decision to register software engineers. 1993 से 1998 के दरमियान IEE और ACM की जॉइंट मीटिंग हुई जिसके ज़रिए ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर काम करने लगी और दोनों जो हैं डिसीजन करती हैं, रजिस्टर करती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को। The accreditation of engineering courses in the United States is only indirectly a matter for professional bodies. Instead, it is undertaken by a body called the Accreditation Board for Engineering and Technology. यूएस के जितने भी इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं वो सब कोर्सेज ABET यानी एक्रीडेशन बोर्ड फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू सर्टिफाइड होते हैं। ABET is a federation of 28 professional engineering and technical societies. ABET के अंदर 28 प्रोफेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल सोसाइटीज़ जो हैं शामिल होती हैं और इनका जो काम है तमाम इंजीनियरिंग के कोर्सेज को सर्टिफिकेट देना है।
As long as software engineering was not regarded as an engineering discipline for the point of view of registration, it was not considered to fall within the ambit. यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है उसे सॉफ्टवेयर डिसिप्लिन जो है उससे रिगार्ड नहीं किया जा सकता और ये एबेट का काम नहीं है. Instead, courses in computer science and software engineering were considered by the Computer Sciences Accreditation Board (CSAB). यानी कंप्यूटर साइंस के और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जितने भी कोर्सेज हैं वो कंप्यूटर साइंसेज एक्रीडेशन बोर्ड यानी CSAB के थ्रू सर्टिफाइड होते हैं. This is a body set up jointly by the ACM and IEE Computer Society. और ये जो सेटअप है ये सारा सेटअप जो है CSAB का ये ACM and IEE के थ्रू है. In 1998, an agreement was reached between ABET and CSAB, leading to the ACM and IEE Computer Society becoming part of the ABET Federation and to the CSAB becoming a constituent part of ABET. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ACM एंड IEE का एग्रीमेंट हुआ था जिनके थ्रू ये दोनों मिलकर काम कर रही थी. बट 1998 में एक और एग्रीमेंट हुआ जिसके थ्रू ABET एंड CSAB मिलकर काम कर रही थी और इनको लीड कर रही थी ACM एंड IEE जो कि ABET का पार्ट है और CSAB जो है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है. American licensing and accreditation practice in engineering requires the definition of a body of language that registered practitioners must possess. The IEE/CS and the ACM are also working together to produce a definition to this. यानी कह रहे हैं कि अमेरिकन जो लाइसेंस देने वाली और सर्टिफिकेशन वाली कंपनी है जो इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस करती है या इंजीनियरिंग रिक्वायर करती है वो एक डेफिनेशन जो है जिसे कहते हैं बॉडी ऑफ नॉलेज, इसके थ्रू ये काम करती है, ओन्स करती है. ठीक है. और IEE और CS ACM इसके थ्रू वर्क कर रहे हैं इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. स्टूडेंट्स, आई होप आपको केस स्टडी की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर परेशान हो गए हैं कि वो जॉब करते हैं और अपना LMS किस तरह हैंडल करें या अपनी असाइनमेंट्स उन्हें समझ नहीं आती, क्विज़ अटेम्प्ट करने नहीं आते, GDB किस तरह करना है ये समझ नहीं आता, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स हमसे बाआसानी हमारे WhatsApp नंबर पे राब्ता करके पेड बेसिस पे अपना वर्क हमसे करवा सकते हैं. कुछ स्टूडेंट्स फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, फाइनल ईयर रिपोर्ट्स, अपने थीसिस और डाइसर्टेशंस वगैरह को लेकर बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं कि किस तरह वो अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स खुद करें, क्योंकि डिग्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका प्रोजेक्ट होता है, आपका रिपोर्ट होती है या फिर आपका इस तरह कह सकते हैं आप प्रपोजल होता है. तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा फेडअप हैं, परेशान हैं, वो भी हमसे रब्ता करके अपने प्रोजेक्ट्स बाइतमाद तरीके से हमारे स्पुर्द करके अपना काम हमसे पेड बेसिस पे करवा सकते हैं. तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. रीड द अबव केस स्टडी केयरफुली एंड मेंशन द आंसर्स इन द टेबल. हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं. हमने केस स्टडी को पढ़ने के बाद इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. क्वेश्चन 1 है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्रीडिशन ऑफ इंजीनियरिंग कोर्सेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स. हमने पढ़ा था कि इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उनको कौन सर्टिफिकेशन देता है. तो उन सब कोर्सेज को सर्टिफिकेशन देती है ABET.
Question number 2. Which professional engineering society in the United States is comparable to the BCS in the UK? यूके के अंदर मैंने आपको कहा था 2 कंपनीज काम कर रही हैं जो अपने टास्क बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं। एक थी बीसीएस और एक थी आईईई। इनकी कंपैरिजन कंपनी कौन सी थी यूएस में, हमने यहाँ पर ये बताना है। बीसीएस की कंपैरिजन कंपनी थी एसीएम। क्वेश्चन नंबर 3. Prior to 1998, which organization was responsible for accrediting courses in computer sciences and software engineering? 1998 में जो मीटिंग हुई उसके तहत कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो रिस्पॉन्सिबल थी कंप्यूटर साइंसेस के और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्सेज को सर्टिफिकेशन देने के लिए? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है CSAP। क्वेश्चन नंबर 4. What lead to the ACM and the IEEE Computer Society becoming part of the ABET Federation? ACM and IE सोसाइटी जो हैं वो ABET का पार्ट हैं, बट इनको लीड कौन कर रहा था? ABET and CSAP. Question number 5. What are the 2 organizations in the United States that are comparable to the IEE and the BCS in UK? कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशंस थे यूनाइटेड स्टेट्स में जिनको हम यूके की कंपनीज के साथ यानी आईईई एंड बीसीएस के साथ कंपेयर कर रहे थे? आईईई एंड एसीएम ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम कंपेयर कर रहे थे। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी असाइनमेंट का सॉल्यूशन समझ आ गया होगा और अब आप अपनी असाइनमेंट खुद बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और स्टूडेंट्स हमें कमेंट्स के थ्रू अपनी अहम और कीमती मालूमात ज़रूर दिया करें। सॉल्यूशन फाइल आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।